میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد سب لوگ اپنی رائے دیں اور پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے آپ کو کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے. ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھنسیں، لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے. ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے. ان لوگوں نے دھمکایا، ان کے نام ہمیں پتہ ہیں. ہم 7 سے 8 لوگ ہیں جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں. ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو. میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 7-8 لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے. ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا صرف. یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے. وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے. ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایفیلیشن تو تھا نہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے، ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں. یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے. اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں. نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا. ہم سب سے علیحدہ ملاقاتیں کی گئیں اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں. اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے، ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں. ہم سب ان کے نام جانتے ہیں، ہمیں تاریخیں یاد ہیں، ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا، کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا. ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں. صابر شاکر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پریمپٹ کر لیا تھا. وہ پاکستان سے چلے گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس رجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے. صابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت عقل مندی سے کام کرنے کا ہے، آپ لوگ پاکستان میں نہ رکیں. لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رک گئے. ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں. میں اور صابر بھائی 2 ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے. ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے. تو صابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی، اے آر بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے. اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی. صابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے. اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے، جو ان کو ٹھیک لگتی تھی، وہ کہتے رہے. جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں، کتنا ان کو ٹریپ کیا گیا. ایون ان کے کاروبار، ان کی فیملیز، ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا. ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا. اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں، کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائڈ پہ لا کر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو. ایکسٹریم قسم کی حرکت کی. یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہمارے اوپر. لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ایف آئی آر دے رہے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تعیناتی کے بعد تبدیلی آئے گی تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے، جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. معاملہ کسی طرح ریزالو کی طرف جا رہا ہے. ہمیں لگتا تھا، ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو. میری ارشد بھائی سے بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے چیزیں حل ہو جائیں. ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو اور پاکستانیوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے اس دھوکے کا ازالہ ہو جائے. ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم نے اس کو کوئی عزت بیزتی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو. صابر شاکر صاحب کو بھی پتا تھا کہ جب کبھی رجیم چینج کرنے والوں کا طاقت میں کمی ہوگی یا وہاں پہ تعیناتیاں تبدیل ہوں گی تو ہم بھی پاکستان آ جائیں گے اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا. لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا. اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے.
मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, मेरा सिर्फ 8-9 महीने का ताल्लुक है अरशद शरीफ से, इससे ज्यादा नहीं है। इस 8-9 महीने के अंदर पता नहीं उस आदमी ने क्या किया, मुझे रोज तकलीफ होती है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं याद कि मैं कभी रोया हूं, यानी जब से मैंने होश संभाला है। अब मुझे बड़ा मायूब लगता है, लेकिन इस वाक़े ने मुझे बीच में रुला भी दिया एक दफा, मुझे इतनी तकलीफ हुई है। तो अरशद शरीफ भाई ने इस लड़ाई को एक और लेवल पे ले गए, वो अपनी कुर्बानी देने के बाद। हम ये सारा कुछ भूलने को तैयार थे, लेकिन हमारा एक आदमी शहीद हो गया है, हमारा खून बह गया है, अब हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े अरसे से इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन उसका जनाजा था, उससे पहले तमाम सहाफियों को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उस दिन भी उसके मौक़िफ़ को गलत साबित करने की कोशिश की गई। दिस इज नॉट फेयर। उसकी लाश का मजाक उड़ाया गया, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। टॉर्चर के भयानक तज्जिए पेश किए गए, हमें इतनी तकलीफ दी, मैं 2 दिन जागता रहा हूं। जिसको मैं फोन करता था, मेरे दोस्त वो रो रहे होते थे कि यार इतना टॉर्चर किया अरशद शरीफ पे। मेरी उनसे वो बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन दिल के बहुत करीब था। जब मैं गिरफ्तार था, यहाँ पे जवेरिया भाभी मौजूद है, इनसे पूछिएगा। अरशद भाई ने टिकटॉक बनाना सीखा सिर्फ इसलिए कि इमरान रियाज गिरफ्तार है, मैं वीडियोस बनाकर उस पर डालूंगा। वो आदमी सारी सारी रात जागता था। मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे आराम नहीं करने दे रही उस वक्त से, मैं यही सोचता जा रहा हूं कि अगर मैं मर जाता इस लड़ाई में तो अरशद शरीफ क्या करता। वो तो कभी चैन से नहीं बैठता, अरशद भाई कभी चैन से नहीं बैठता। ये चीज मुझे सुकून नहीं लेने दे रही। मैं रात को सही से सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। हम इस लड़ाई को भूलना चाहते थे। हमें लगता था कि 8-10 महीने में, 15 महीने में बुरे दिन टल जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, रजीम चेंज, ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, हम भी सुरखरू हो जाएंगे, और आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के तजुर्बात करने से पहले ये लोग 10 मरतबा सोचेंगे। हमें तो इस लड़ाई का इख्तिताम ये लगता था, कोई जाती पर्सनल चीजें नहीं थी, लेकिन हमारा भाई मार दिया। अब ये ऐसे इतने आराम से खत्म होगा नहीं। अब या तो हमें भी मारो या फिर हमें इंसाफ दो। इंसाफ के लिए हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने उस अदालत का दरवाजा खटखटाया है जिसका दरवाजा अरशद भाई ने अपनी जिंदगी में खटखटाया था। उसको भी यकीन था उसको इंसाफ मिलेगा तो अदालत से मिलेगा। हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन दी थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे जब जमानत मिली तो अदलिया से मिली थी कि इसके ऊपर झूठे मुकदमे, इसको रिहा किया जाए। अल्टीमेटली आपको रिलीफ अदलिया से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अदलिया की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहां बहुत ज्यादा दबाव है इदारों के ऊपर। स्पेशली पाकिस्तान की अदलिया को हमेशा दबाव में लेने की कोशिश की जाती रही है, और हमें ऐसा लगता है कि अरशद भाई का खून जो है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने दुनिया के मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ये इतना बड़ा वाकया है जिसने हमें, पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दी है। ये इतना बड़ा वाकया है कि कीनिया के अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर ये छप रहा है, और हमारे यहाँ पे एक सुर्खी से ज्यादा या एक कॉलम से ज्यादा हमारे ताकतवर लोग यहाँ पे लगने नहीं दे रहे। इसको कभी हादसे का रुख दिया गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, और बार बार इसके ऊपर मौक़िफ़ बदला गया। हकायक को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, केस का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। मैं इस केस के बारे में, कीनिया में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं और मेरे साथी, और वो खुद अभी आपको बताएंगे सब लोग, हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें तंग किया था। हम सारे गवाह हैं कि किसने हम पे FIRs करवाई थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें गालियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें धमकियां दी थी। हम सारे गवाह हैं कि किसने हमें, हमारे ऊपर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी थी। हमें पता है। हम कभी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि हम सारे जिंदा थे। अब हम में एक शहीद है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको इंसाफ दिलाएं। लिहाजा अब हम बताएंगे, लेकिन कहां बताएंगे? क्या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नाम लेना शुरू कर दूं मैं? क्या मैं यहां बोलना शुरू हो जाऊं? मुझे कोई कानूनी फोरम चाहिए, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम सब जाएं
और जाकर अपना अपना बयान रिकॉर्ड करा के बताएं कि वो कौन था जो ये जिल्लत और रसवाई की कहानी लिख रहा था, वो कौन था जिसने हमारे लिए जिंदगी को तंग कर दिया था। ये सारा कुछ हम किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे बताना चाहते हैं जहां पे ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस बात का पता करवाया जाए कि कौन लोग इसके पीछे थे, तमाम मुद्दइयों के इंटरव्यू लिए जाएं, और उसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एक कमीशन बनाए, एक कमीशन बनाए अपने सर्विंग जजेस की ज़ेरे निगरानी जो काम करे, और तमाम लोग उसके अंदर अपने स्टेटमेंट्स जाकर जमा करवाएं। वो इसकी रिपोर्ट मुरतब करे और ये सिलसिला खत्म हो। पाकिस्तान को मजाक बना के रख दिया है। अब हमें या तो अरशद शरीफ का कर्ज उतारना है तो सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए उसके जनाजे में कितने लोग आए, आप सबने देखा। क्या हम सिर्फ जनाजों में शिरकत करने वाले लोग हैं? क्या हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते? या अगर कोई जिंदा शख्स है और वो इंसाफ मांग रहा है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा? वो चीखता चिल्लाता इस दुनिया से चला गया। चीफ जस्टिस को उसने लेटर लिखा, सबको बता रहा था, टीवी पे कह रहा था, जंगल में पड़ा हुआ था 2.5 महीने से, एक ही कमीज के अंदर वो वीलॉग्स कर रहा था। उसने खुद बोला अपने मुंह से। तो क्या जनाजों में शिरकत करनी है? कल एक का जनाजा पढ़ लिया, आज दूसरे का पढ़ लेना, फिर तीसरे का पढ़ लेना, और एक एक करके सारे मारे जाएंगे। जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा, जो आईना दिखाएगा, सवाल पूछेगा, मारा जाएगा। यहां पे इस सिलसिले को आप सब रोक सकते हैं। मुझे आपसे यह कहना है कि मेरे पास एक तरीका है आइन और कानून के मुताबिक, और वो तरीका हमें अरशद शरीफ ने बताया है कि कानून के मुताबिक इंसाफ मांगो। खत लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखो। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। मैंने जाकर उसको लेटर बॉक्स में डाला है। लिखो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करो। इतने खत लिखो, इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। पूरा पाकिस्तान खत लिखे, ओवरसीज पाकिस्तानी खत लिखें। लाखों खत पहुंचने चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोजाना। आज शुरू हो जाए, अगले 10 दिन तक खत लिखें, रोज खत लिखें, सारे खत लिखें। बच्चे लिखें, खवातीन लिखें, बुजुर्ग लिखें, नौजवान लिखें, स्टूडेंट्स लिखें, मजदूर लिखें, तमाम लोग खत लिखो। लिखो खत और भिजवाओ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। झंझोड़ो अपने ईवानों को, और वहां खत में सिर्फ छोटी सी डिमांड करें अपने अल्फाज में कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाइए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनवाइए जहां पे जाकर हम तमाम हकायक रखें। हम ये घिनौने हकायक कौम के सामने नहीं रखने चाहते। कपड़े उतारने का शौक किसी और को होगा, हमें किसी के कपड़े उतारने का या किसी को जलील करने का शौक नहीं है। ये हमारा अपना इदारा है, हमारे अपने लोग हैं। लेकिन अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो हमें एक फोरम चाहिए जहां पे जाके हम ये सारी इंफॉर्मेशन दें। तो मुझे मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैंने साबिर भाई को बताया है कि ये कैसे हुआ खत लिखने वाला मामला, लेकिन ये अरशद भाई का आइडिया था। आप सब लोग खत लिखें, 5 लाइनें लिखें, 2 लाइनें लिखें, 4 लाइनें लिखें, 4 सफ़े लिखें, तफसील लिखें, और अरशद शरीफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मांगे। लिखना क्या है? सिर्फ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। अपनी रिक्वेस्ट करें, लिफाफे में डालें, टिकट लगवाएं, और लेटर बॉक्स में डालते हुए अपनी 10 सेकंड की वीडियो बना लें। जब आप उसको लेटर बॉक्स में डाल रहे हो तो अपनी 10 सेकंड की वीडियो बनाकर यहीं पे भी हम लोग तय कर लेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, कि इसका कोई हैशटैग बना लें या कोई इसकी कैंपेन लॉन्च कर दें। जो शख्स भी लेटर डाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंसाफ के लिए, वो एक जुमला वहां बोल दे खड़ा होकर लेटर डाल के कि अरशद शरीफ को इंसाफ दीजिए, और 10 सेकंड या 5 सेकंड की वो वीडियो सोशल मीडिया पे उस हैशटैग के साथ डाल दें। हम चाहते हैं कि इतने खत लिखो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। मांगो इंसाफ तब तक जब तक मिलता नहीं है, और ये आईनी और कानूनी रास्ता है। आप सब लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत, सब लिखिए, 10 दिन तक खत लिखिए। उसके बाद क्या करना है अल्लाह और रास्ता दिखाएगा इंशाअल्लाह।